So, hi everyone, welcome to our channel. And in this podcast, we will be discussing her journey, how he cracked the big company that is the Barclay. So, let's discuss all the things, how she prepared for the interviews and placements. So can you please give your briefly introduction to our audience? Yeah, sure. So, hello everyone, I'm Sanika Patil and I'm the fourth year undergrad at PICT Pune. Uh, I was the GDSC lead for the past year and currently I'm a GitHub campus expert for my college. Also, I'm working on some other stuffs like ML projects and all. I have done my internship in third year at Barclays and currently I got a PPO. So, I'll be joining Barclays as a full time employee in next July. So, yeah. Okay, आप अपनी कोडिंग जर्नी बताएंगे जरा मींस from where you started the coding from the first year or the for the second year from the second year. Yeah, sure. So, in the first year, I started coding, learning languages like C++ and Python because Python was in our curriculum. So, I started learning that. But C++ was the language which covered like all the things and that are required for the coding interviews and all. So, like Python is a thoda superficial language, so I didn't cover that. But my basic coding language, which I did in the first year, was C++. So I started learning its syntaxes, loops, and all the basic things which are required for solving some easy level questions. So I learned C++ throughout my first year, and also side by side, I was doing web development. So HTML, CSS, that were the things I learned during my first year. Also, I tried to build some small websites, web pages. So yeah, these are two, three things I done in my first year. Okay, okay. And how you approach the DSA because means what resources you follows in the DSA while preparing the DSA data structures and algorithms. Right. So GFG was one of the main thing that everyone follows during their undergraduate journey. Similarly, I also followed GFG, some courses and YouTube channels like Love Babbar is there. Then Anush Bhaiya was there. Then Apna College is there. So some channels are those channels who cover problems. Then Striver is one of this channel who mainly focuses on the problem solving skills and approaches of the different questions, like how the question should be approached. So Striver is was the great channel that everyone should follow. So you can get some approaches and some standard questions that are asked in the interviews. He There are some SD sheets which are provided by Anush Bhaiya also, then Love Babbar also, Striver. So you can follow that as well. Also, Urj Goel Okay. has some standard SD sheets, and he also posts some videos regarding DSA and also these are some good resources to follow. So you also followed that A to Z sheet of the Strava. Yeah, I did. Okay, okay. I think that's the best sheet I think to follow us if we are starting from the pressure. I think. What do you think Yeah, about yeah, it? yeah. And Because what were everything the is sorted in a way like he has sorted problems like difficulty wise, then topic wise problem segregation is there. So it's pretty much optimized way to pick up one problem and solve it in a time, okay, proper okay. time. एंड आपने मीन्स कौन से कोडिंग प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर किए कोडिंग करने के लिए मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस? ईयर राइट मैंने फर्स्ट ईयर में हैकर किया था. देन हैकर रैंक से चालू किया था एंड देन हैकर पे शिफ्ट हुई थी. देन थोड़ा-सा पीयर प्रेशर की वजह से मुझे लाइक कोड शेफ की भी आदत लग गई थी. सो आई यूज्ड टू गिव contests on code chef and code forces as well in my second year. But after that I shifted to lead code and that was the main platform I was following during my internship periods. So basically I started with hacker rank and ended up with lead code. So yeah. Okay, okay, okay. And what technologies you explored in the academics means Yeah. from the first So year? basically, as I mentioned in the previous question, I learned web development in since my first year, but I didn't find it so interesting. So I just learned front end part of it.
and I left the backend part. Like I didn't learn any backend technologies. So in second year, I started exploring thoda Flutter, like how app development works, how widgets works in that. So thoda Flutter explore kiya. But then when I was in third year, I got selected into Microsoft Engage. So Okay. there itself, I got selected from. I passed two of their rounds. So first was the application and coding round, and second was the aptitude round. So I passed those two rounds, and I got selected for the project phase. So the project phase was we are given with the three problem statements, and we have to build one of the solutions for it. So I picked up the ML wala project and I started working on it. ML was the unknown technology to me. I started with ML. I started learning Python and थोड़े libraries of ML. So वहां से मेरी ML का थोड़ा सा base बन गया था. And then I built what movie recommendation system basically for that project stuff. So that's how I explored ML in my third year. And currently also I'm working on AIML basically. So my final year project is also based on AIML. So ओके एंड आप बता सकते हो मीन्स आप जरा एक्सप्लेन करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एंगेज में एक्चुअली होता क्या है एंड उसमें क्या होता है एज आई आई थिंक उसमें इंटर्नशिप्स मिलते हैं सो आप बताएंगे क्या होता है एक्चुअली या राइट. सो हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट के 4 राउंड्स थे. सो फर्स्ट राउंड वाज कोडिंग राउंड एंड सेकंड राउंड वाज एप्टीट्यूड राउंड. सो सेकंड में सिर्फ एक क्वेश्चन था एप्टीट्यूड का एंड यू हैव टू प्रोवाइड द थॉरो एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट यू हैव आंसर यू हैव चूज. सो वो आंसर चूज क्यों किया इसका थॉरो एक्सप्लेनेशन देना था. तो ये सेकंड राउंड था. फर्स्ट राउंड था वाज कोडिंग. सो कोडिंग में भी एक कोडिंग का क्वेश्चन था एंड बाकी सारे जो लाइक एमसीक्यूज थे वो बेस्ड ऑन सम लैंग्वेजेस लाइक जावा के थे. देन सूडो कोड्स पूछे थे. सो दैट वाज थोड़ा मिक्सचर राउंड था. टेक्नोलॉजीज के बारे में बोला जाए तो लाइक एसक्यूएल के भी क्वेश्चंस थे. तो थोड़ा मिक्सचर वाला राउंड था. सो फर्स्ट राउंड वाज कोडिंग राउंड एंड सेकंड वाज एप्टी एंड देन थर्ड जहां से सेग्रीगेट होने के बाद जो थर्ड लोग मतलब थर्ड लेवल पे जो लोग सिलेक्ट हुए थे उनको प्रोजेक्ट बिल्ड करना था. तो प्रोजेक्ट में 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थे. वन ऑफ देम वाज डेटा साइंस का था, देन डेटा एनालिस्ट वाला था एंड देन थर्ड वाज एआईएमएल का था. तो आई पिक्ड अप एमएल वाला प्रोजेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड आई स्टार्टेड बिल्डिंग सॉल्यूशन फॉर इट. तो फिर वो होने के बाद में इफ यू गेट सिलेक्टेड तो आपको माइक्रोसॉफ्ट में सीधा इंटरव्यू का चांस मिलता था फॉर इंटर्नशिप. तो I got selected in that. I gave my interview and there itself I got rejected. And कहाँ पे अगर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहता है तो then you'll get direct internship at Microsoft. So this was the project process at our times for Microsoft Engage. एज यू सेड मींस आपने ऑफ कैंपस ट्राई किया था शायद ये Yes. okay okay and for the tier 3 students I think this is the best opportunity to approach the Yes. Microsoft okay Right. Microsoft Engage Exactly. okay and but इस साल Microsoft Engage नहीं हुआ शायद नहीं लास्ट टाइम क्या हुआ था प्रोजेक्ट्स काफी थोड़ा लाइक क्लटर्ड था. जो भी प्रोसेस था प्रोजेक्ट फेज के बाद में बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट इंटर्नशिप मिल गया था. जबकि जिसको इंटरव्यू का चांस मिला उनके भी प्रोजेक्ट काफी अच्छे थे जिन लोगों का डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया था. तो थोड़ा बायस्ड प्रोसेस था. तो उसके लिए इस टाइम का माइक्रोसॉफ्ट एंगेज कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि थोड़ा उसके रिलेटेड ज्यादा चर्चे हो गए थे लिंक्डइन पे वगैरह पे. तो दिस टाइम दे हैव कैंसिल्ड द प्रोसेस. as you said आप अभी प्रोजेक्ट्स AI ML के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं कैन यू मींस आप बता सकते हैं कि मींस एज कोई फ्रेशर इफ आई एम मींस मेरे को इफ स्टार्ट करना है ML देन हाउ कैन आई थोड़ा रोड मैप बता सकते हैं आप कि कैसे कर सकते हैं आप राइट. ML स्टार्टिंग से सो बेसिकली मेरे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि मैं इसे 2-3 महीने का लर्निंग फेज लेके पूरा अच्छे से नहीं चल पा रही थी. मेरे पास बस 45 डेज का स्पैन था एंड आई हैव टू बिल्ड अ फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट फॉर दैट. तो मैंने चालू किया पाइथन से एंड देन मैंने पूरा एमएल नहीं पढ़ा है अभी तक. इट इज लाइक मैं अभी भी प्रोसेस में हूँ बट द एमएल पार्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर माय प्रोजेक्ट दैट आई स्टार्टेड लाइक लर्निंग. तो मैंने पाइथन के थोड़े से लाइक लाइब्रेरीज वगैरह पढ़े, थोड़े सिंटैक्सेस वगैरह पढ़े व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर एमएल. एंड फिर एमएल का जो मेरे मेरे प्रोजेक्ट के लिए जो एल्गोरिदम्स लगने वाले थे, जो अप्रोचेस लगने वाले थे, जो लाइब्रेरीज लगने वाले थे, दैट आई स्टडीड एंड देन दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. सो मैंने उन चीजों के बारे में जस्ट गूगल आउट किया जो मेरे प्रोजेक्ट में काफी यूज होने वाले थे.
तो वो जो चीजें हैं वो मैंने लर्न की एंड बाद में देन आई स्टार्टेड विद द कोर्स AIML का कोर्स ऑन Coursera आई गेस आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम करेंटली बट या थोड़े सर्टिफिकेशन कोर्सेज यू कैन टेक एंड वो आपको पूरा पाथ दे देता है लाइक ML का सो दैट्स हाउ यू कैन लर्न ओके एंड मीन्स आपने रिसोर्सेज कोर्सेरा से फॉलो किए, नॉट एंड यूट्यूब, एंड इफ नहीं एनीवन इज ट्राइंग बिकॉज आउट सी यूट्यूब। अगर हाँ, अगर तुम लोगों को पता है कि कहाँ पे अप्रोच करना है देन यूट्यूब थोड़ा सा मेस्ड अप हो जाता है कि वो चालू करते प्रॉपर बेसिक से यू डोंट गेट द प्रॉपर परफेक्ट थिंग दैट यू वांट तो जो अप्रोचेस रहते हैं जो रिगार्डिंग मेरे प्रोजेक्ट के थे उस रिगार्डिंग का मुझे कोर्स मिल गया था सो आई डेंट एक्सप्लोर्ड मच अबाउट ML एट दैट टाइम ओके ओके, एंड व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट? इट वाज मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम तो ओके जो यूजर्स के जो यूज कर रहे हैं उसका जो पास्ट लाइक ये रहता है जॉनरा रहता है जो जॉनरा वो कंसिस्टेंटली देख रहा है ऑन दैट बेसिस वी यूज टू रिकमेंड मूवीज टू देम ओके ओके ओके, वेरी गुड। एंड आपने बोले आप गिटहब कैंपस एक्सपर्ट भी थे इन योर राइट कैंपस, सो या क्या है होता है, आप जरा एक्सप्लेन करेंगे ना, हाउ यू अप्लाइड फॉर द गिटहब कैंपस एक्सपर्ट? या सो आई वाज ट्राइंग सिंस माय फर्स्ट ईयर फॉर GC गिटहब कैंपस एक्सपर्ट के लिए बट दो टाइम मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया एंड थर्ड टाइम व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर मैं सिलेक्ट हो गया एज अ GC सो वहां पे ऐसा रहता है कि GitHub इज अ वेरी ह्यूज कम्युनिटी एंड इट्स अ वेरी गुड कम्युनिटी टू लर्न एंड एक्सप्लोर न्यू टेक्नोलॉजीज वहां पे मैं फर्स्ट ईयर से ही ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करती थी तो काफी जो कॉम्पिटिशन्स रहते हैं जैसे अक्टूबर फेस्ट हो गया स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड हो गया गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड हो गया तो यहाँ पे पार्टिसिपेशंस रहते थे तो मेरे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस चलते रहते थे सो फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो सिंस माय फर्स्ट ईयर कि GC एग्जिस्ट करता है एंड इट्स अ वेरी गुड कम्युनिटी दैट वहाँ के जो लोग रहते हैं वो काफी अच्छे रहते हैं टेक्नोलॉजिकली बहुत एनहांस्ड रहते हैं सो आई वाज लाइक कि लेट्स अप्लाई फॉर इट एंड देन दो बार रिजेक्ट होने के बाद में फिर थर्ड बार भी मैंने अप्लाई कर दिया कॉन्फिडेंस में देन आई गॉट ओके सिलेक्टेड बिकॉज तब तक पोर्टफोलियो काफी अच्छा हो गया था एंड गिटहब पे भी काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए थे तो वो ऐसा रहता है कि काफी लोगों को अभी आप अगर टीयर 3 कॉलेजेस से हो तो यहाँ पे मेरे कॉलेज में भी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत कम लोग करते हैं लाइक उनको पता भी नहीं रहता है हाउ गिटहब शुड बी यूज्ड और गिटहब के क्या क्या और लाइक तरीके हैं यूज करने के किस किस चीजों के लिए गिटहब यूज होता है तो ये सब चीजें थी सिर्फ वेबसाइट होस्टिंग के अलावा और भी चीजें होती है गिटहब में तो ये सब चीजें थी सो आई वाज लाइक लेट्स टेक सम सेशंस अंडर GC सो यू कैन टेक सम सेशंस इनसाइड ऑफ योर कॉलेज वहां पे आप लोगों को बता सकते हो कि ओपन सोर्स में कैसे रहता है ओपन सोर्स ऑल्सो एज अ जॉब ऑल्सो यू कैन टेक फॉर द ओपन सोर्स सो डोंट टेक इट सो लाइटली कि ओपन सोर्स में कुछ नहीं होता इट इज जस्ट अ फ्री कॉन्ट्रीब्यूशन इट इज नॉट सो ये थोड़ा ये करने के लिए मैंने GC का एप्लीकेशन सिलेक्ट होने के बाद में थोड़ा अवेयरनेस काइंड ऑफ थिंग अपन कर सकते हैं कॉलेज में सो दैट्स वन ऑफ द थिंग also you can attend some of the good events you can get some sponsorship for your events so like that cool stuff ओके, एंड हाउ यू स्टार्टेड द ओपन सोर्स? huh so basically I started one of the communities in my first year around along with my 4 friends जो छत्तीसगढ़ से थे so we got connected on Discord इन वन ऑफ द हैकाथॉन्स तो हम लोगों ने जब लॉकडाउन था तब हम लोगों ने कनेक्ट किया डिस्कॉर्ड पे एंड वी पार्टिसिपेटेड इन हैकाथॉन वो मतलब सब एक दूसरे को नहीं जानते थे कोई भी इन पर्सन बट जस्ट वी गॉट कनेक्टेड एज वी वर द वेब डेवलपर्स एट दैट टाइम तो फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट की मैं थी एंड बैक एंड डेवलपमेंट के लिए बाकी लोग थे सो that's how we started we participated in the hackathon and from them I got to know ki, like how to use GitHub then how to host websites so kind of that stuff देन वहां से मुझे एक लिंक्डइन पे कनेक्शंस हुए एंड फ्रॉम दैट आई गॉट टू नो कि ये सब काइंड ऑफ प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं फिर स्टार्ट विद गिटहब सॉरी गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड सो फर्स्ट प्रोग्राम आई पार्टिसिपेटेड और गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड वहां पे बहुत बहुत कंपटीशन रहती है ओपन सोर्स के लिए बट मेरे कॉन्ट्रीब्यूशंस वहां पे मर्ज हो चुके मेरे PRs मर्ज हो गए थे एट दैट टाइम so I contributed in front end only but still small contribution I have done बट वो काफी अच्छी चीज थी मेरे लिए
तो वहां से मेरी ओपन सोर्स की जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन मैं स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड में एज अ मेंटर सिलेक्ट हुई थी टू मेंटर अनदर जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनको मेंटर करने के लिए। तो लाइक दैट माय जर्नी स्टार्टेड इन ओपन सोर्स। देन मैं हैकटोबर फेस्ट में पार्टिसिपेट करने लगी एंड हैकटोबर फेस्ट में मैं एवरी ईयर पार्टिसिपेट करती हूँ। हर एक ईयर के स्लैक्स मेरे पास रहते हैं उसके। So that's how I got to know upon open source. अभी अक्टूबर पे चालू भी है शायद, या हाँ फ्रॉम हाँ द चल 2 रहा है, अभी अक्टूबर शायद। कॉन्ट्रीब्यूशंस करने बाकी है, जस्ट रजिस्टर करके रखा है। ओके यस। ओके। एंड आपने फिर मींस डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टेक स्टैक्स, बिकॉज इफ वी आर डूइंग ओपन सोर्स देन वन प्रॉब्लम कम्स वेरी हार्डली कि हम टेक स्टैक ही नहीं समझ पाते। सो राइट, आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ एंड हाउ यू ओवरकम दैट? एग्जैक्टली। सो व्हेन आई वाज अ न्यूबी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस कौन से पिक करने, प्रोजेक्ट्स कौन से पिक करने, कैसे देखना है गिटहब पे। तो मैंने देखो पहली बात तो ये थी कि खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए 100%। जब तक आप खुद से एक्सप्लोर नहीं करते तब तक कोई भी आपको अगर गाइड करे देन आपको अच्छे से नहीं समझ पाते। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। तो मुझे समझ में आया कि जहाँ पे टैग्स रहते हैं ना ऐसे, तो टैग्स में फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज रहते हैं। तो वहां पे जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के जो प्रोजेक्ट्स थे वहां से आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग। ऑल्सो आई हैव वन ऑफ द फ्रेंड्स, सो ही ऑल्सो स्टार्टेड गाइडिंग मी, सो वी बोथ डिड दैट टुगेदर। Okay, okay. And means फिर tech stack, I don't understand. If I means in the first year, I was applying for the GSOC, that the Google Summer of Code. I chose the organization also, but I was not able to means contribute at that because I was not able to understand that tech stack. So आप कुछ बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कर लो कि आपका कुछ हो जाएगा, means you will understand that tech stack राइट, and you सो will start आपका टेक contributing. स्टैक जो है, राइट, आपका टेक स्टैक जो है वो कंफर्म रहना, देख आपको पता रहना चाहिए आपको क्या आता है, एग्जैक्टली क्या आता है उसमें भी। सो ये चीजें हैं जहाँ पे थोड़ा आपको है ना सेल्फ सफिशिएंट काइंड ऑफ थिंग आती है कि आपको पता है कि तुझे क्या आता है भाई, इतना आता है तो ठीक है, बस इतने में तो कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अलावा अगर कंट्रीब्यूशन करने तो वहां पे यार बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, पाइथन आता है, जुपिटर नोटबुक्स वगैरह काइंड ऑफ थिंग्स, यहाँ पे इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। यू कैन टेक योर स्मॉल केस जो भी आपके टेक्नोलॉजीज है वो लेके वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो, उनके इश्यूज भी बहुत अच्छे खासे रहते हैं। तो वो चीजें लाइक जीसॉक का अगर बात करोगे तो वो थोड़ा अलग लेवल का हो जाता है। तो वहां पे अगर आपको स्टार्ट ही करना है ओपन सोर्स तो मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड, देन स्क्रिप्ट विंटर ऑफ कोड एंड हैक्टोबरफेस्ट आर द गुड ओपन सोर्स प्रोग्राम टू गेट स्टार्टेड विद, अगर आपको बेसिक लेवल पे टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं तो। जीसॉक इज फॉर जो ऐसे बहुत प्रोफेशनल लेवल पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, दैट इज फॉर देयर। Okay. I was thinking that girls script summer of code is for only girls, not for the boys. So I didn't No, no, apply no, no, it in is the not. first year. No, It I is was not thinking like like that that. only. Okay, okay, okay. No, That's the why I name is didn't like apply. it No. is a community who empowers the women in tech. So the name is like that. Boys can also come here. It is not like that. No, no, I was thinking about that कि भाई means only the girls का girls ही apply कर सकते हैं. But in the 2-3 months or I see in my senior only who was the mentor of the girls grade summer of code. So I asked Exactly, right. that guy कि भाई तूने कैसे किया? बोल रहा था it's for all the guys, not for only girls. So Right. okay. एंड मेरे को एक पूछना था कि एज आपने डीएसए चालू किया था देन आपने कोई ऑब्स्टैकल फेस किए डीएसए में? मींस एक्चुअली होता है, आई डोंट नो आपके साथ हुआ है कि नहीं, बिकॉज व्हेन आई वाज स्टार्टेड एंड मेरे सबके साथ होता है एक्चुअली कि रिकर्जन में बंदा रुक जाता है। बहुत रिकर्जन प्रॉब्लम आती है। हुआ है, हाँ, एंड उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होते, तो राइट, आपने कैसे ओवरकम किया? राइट। सो डीएसए में ऐसा कोई नहीं होगा आई थिंक जिसको प्रॉब्लम नहीं आया होगा। बेसिकली रहती 5-10 ही चीजें है वो, बट उसके वैरायटीज बहुत अलग अलग रहते हैं, अप्रोचेस बहुत अलग अलग रहते हैं। सो वो एक चीज मैंने बहुत ये की कि जब प्रॉब्लम पढ़ते हो तब अगर आपको पता नहीं है कि वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व करना है
सो इट इज काइंड ऑफ ट्रिकी कि आपको फाइंड आउट करना है कि इसके लिए यूज कौन सा डेटा स्ट्रक्चर करना है एग्जैक्टली। सो वो एक काफी ट्रिकी चीज रहती है। एंड रिकर्शन का बोलोगे तो मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था, तो वो तब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं, इतना नहीं आ रहा था। बट देन यूट्यूब चैनल्स रहते हैं जो काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं स्टेप वाइज कि रिकर्शन कॉल कैसे होता है, ये फंक्शन कॉल करके तो फंक्शन का कॉल किधर जाएगा, वहां से कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे। तो लाइक दैट तो थोड़ा वो चीज रहता है। एंड देन खुद से कोड करने के बाद में समझ में आती है, चीजें ज्यादा क्लियर होती है कि एग्जैक्टली किधर से क्या जा रहा है भाई, किधर से कॉल हो रहा है, कौन सा रिटर्न स्टेटमेंट कब प्रिंट हो रहा है। सो लाइक दैट तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। बट देन आई गेव अराउंड 1 मंथ फॉर रिकर्शन, तो थोड़ा आराम से बैठ के, क्योंकि तब मुझे इतना घाई नहीं था ना कि प्लेसमेंट्स आ रहे हैं या फिर इंटर्नशिप्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने को जल्दी जल्दी करना है। सो आई स्टडीड इन यू नो थोड़ा सा अच्छे से किया था उसको तब। आराम से, okay. You started एग्जैक्टली early, no? That's why. Okay. हाँ एग्जैक्टली आई स्टार्टेड अर्ली, तो थोड़ा अच्छा खासा टाइम था। Okay, okay. And means आपने बोले means you tried code forces and code chefs also. So आपने competitive programming किए means. हाँ वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया था, लाइक डीएसए से ज्यादा सीपी में प्रॉब्लम आया था मुझे, बिकॉज हमारा जो पीआईसीटी का क्राउड है वो सब सीपी ओरिएंटेड लोग थे पहले। Oh, तो उनका ऐसा था कि कॉन्टेस्ट चलो देने हैं, सब 7 बजे डिनर खत्म करके 8 बजे को सब कॉन्टेस्ट को बैठ जाते थे। थोड़ा एंड अच्छे से. टाइम के उधर टाइम का भी इशू होता है, तो मुझे ऐसे टाइम पे मतलब मैं जैसे आराम से करती थी डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व, मुझे वैसे आदत नहीं थी, तो स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजेस फेस हुए कि टाइम पे प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे थे। एंड रैंकिंग ऐसे सीधी दिख रही थी मेरी लाइन जो थी स्टैटिस्टिक्स वाली, तो कुछ इंक्रीजिंग ग्राफ नहीं था मेरा। तो मैंने थोड़े देर ट्राई किया, जब जैसे ही मुझे थोड़ा लॉजिकली मैथमेटिकली थोड़ा बिल्टअप होना चालू हुआ कॉन्सेप्ट, आई लेफ्ट इट, क्योंकि मुझे Okay. स्ट्रेस नहीं लेना था, मोटिवेट करना था खुद को एट इन माय थर्ड ईयर। तो मैंने कोड फोर्सेस और कोड शेफ प्रॉपरली बंद कर दिया। मुझे एक बार अप्रोचेस एंड मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग की मतलब कैपेबिलिटी हो जाती है, थोड़ा आदत हो जाती है थिंकिंग की, अप्रोचेस की। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया कोड फोर्सेस भी और कोड शेफ भी। आई शिफ्टेड टू लीड कोड, मैं कंसिस्टेंटली फिर लीड कोड ही सॉल्व करती थी, तो फिर वही था। Okay. Can you give some आपको reasons? पता रहना चाहिए कि आपको पता रहना चाहिए कि करेक्ट टाइम पे कहाँ तक सॉल्व करना है, कितना टाइम देना है एक आधे प्रॉब्लम को, कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहाँ पे सॉल्यूशंस देखने हैं नहीं देखने हैं, देन कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छे से यूज करना है। इफ इट इज डिमोटिवेटिंग यू देन यू शुडंट यूज इट। थोड़ा सा लॉजिकल वगैरह आप कॉन्टेस्ट में मत पार्टिसिपेट करो, फिर आप जो उनके लाइब्रेरीज में क्वेश्चंस रहते हैं वो सॉल्व करो, आपका टाइम लेके सॉल्व करो। बट ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा है, जस्ट ट्राई दैट आउट। उतना उतना थिंकिंग पावर बिल्डअप करो एंड देन शिफ्ट टू द अनदर प्लेटफॉर्म, ये माइट बी यूजफुल रह सकता Okay, okay. And can है। you यस give some reasons why should anyone start the CP or competitive programming? Some reason कि start करना चाहिए और कुछ नहीं. लोगों को ऐसे बहुत बड़ी कंपनीज टारगेट करनी रहती है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गोल्डमैन सैक्स वगैरह हो गया, जहाँ पे सीपी का थोड़ा सा टच लगता ही है। लाइक देखो, अगर लॉजिकल और मैथमेटिकल थिंकिंग की का अगर आपको थोड़ी बिल्डिंग करनी है ना, तो फिर सीपी इज वन ऑफ द गुड वे टू गेटिंग स्टार्टेड विद। वहां से आपको थोड़ी आदत लग जाती है, थोड़ा टाइम जो आप ये करते हैं, कंस्ट्रेंट्स जो आपको दिए रहते हैं प्रॉब्लम में, उनको कंसिडरेशन में कैसे लेना है, कहाँ तक लेना है, कौन से न्यू इंटीजर या फिर उनको कैसे लिमिट्स रखना है कंस्ट्रेंट्स में, अकॉर्डिंग टू देम कैसे डेटा टाइप्स चेंज करना है। तो ये काफी आदत आपको वहां से हो जाती है सीपी से। तो Okay. ये बहुत यूजफुल होता है। एंड इफ यू आर टारगेटिंग सम गुड कंपनीज, तो वहां पे तो मतलब वैसे ही तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक डी शॉर रह गया, तो हाँ. सीपी ओरिएंटेड काफी क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। Okay, CP oriented. आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम डी शॉर जस्ट बिकॉज माई सीपी स्किल्स weren't दैट गुड, तो वो थोड़ा मैटर करता है। Okay, and are you trying new companies अभी नहीं, now? अभी तो थोड़ा थोड़ा अभी आराम चल रहा है। अभी Okay. हायरिंग प्रोसेस में थोड़ा इतना नहीं है, बिकॉज मार्केट इज ऑल्सो डाउन, तो हायरिंग भी थोड़ी ज्यादा फ्रीज हो गई है इस साल। तो ऐसा है कि जो मिला है उसमें खुश रहो। अगर आप प्लेस्ड Okay. हो गए वो भी काफी है। इफ योर पैकेज इज Yeah. बिलो 10 ऑल्सो, बिलो 8 ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फाइन एट दिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मार्केट सिचुएशन इज वेरी डाउन। तो ऐसा है कि अभी स्टेबिलिटी चल रही है लाइफ में, थोड़े अलग प्लान्स है, विल एग्जीक्यूट दैट। Okay, okay. And now recession is also there, no?
due to the, I don't know why there is a recession of companies. I think या hiring रिसेशन इज process में कमिंग. recession. यस यस यस. रिसेशन की वजह से काफी कंपनीज ने काउंट भी कम कर दिया है, किसी किसी ने हायरिंग भी बंद कर दिया है. Okay. तो ये काफी चीजें हैं. Okay. And if we are talking about the DSA, then मेरा कैसे हुआ था DSA में actually, मैंने सेकेंड ईयर में मीन्स फर्स्ट ईयर में एक्चुअली फॉलो किया था फ्रॉम द सेकेंड सेम. सो फर्स्ट सेकेंड सेम तो पूरा हो गया मेरा, मीन्स मैंने बेसिक्स वगैरह कवर वगैरह किया. एंड व्हेन आई स्टार्टेड लीड कोड, एंड जब मैंने रिकर्जन में पहुंचा जब मैं, तब I stopped coding. I direct to jump into the third sem. After the third sem, I started to coding. I recently ये recently started the coding. Means एग्जैक्टली DSA recently started. ये नहीं चीज करना बहुत है भाई लोगों के मुझे. साथ होती है. एग्जैक्टली. काफी लोग ऐसे यू नो सैचुरेटेड हो जाते हैं कि अभी कोडिंग बहुत हो गया एंड अभी नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं. छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन यार. वो डीएसए ऐसा है कि किधर भी जाओ आपको पूछने तो वाले है ही. So that is not the escape way that you should leave coding if you're not getting any topic or something. तो ट्राई करो. थोड़ा ब्रेक ले सकते हो या फिर सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो. किसी को बोलो कि भाई बैठ के पढ़ा मुझे. इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, थोड़े कनेक्शंस बनाओ, थोड़ा नेटवर्किंग करो, देन आस्क योर सीनियर्स टू सिट विथ यू टू टीच एवरीथिंग. तो वो काफी यूजफुल हो जाता है कभी कभी. After that, I learned the recursion. I solved the problems also. Means आगे पता चला कि भाई recursion and DSA के means उसके सिवाय कुछ नहीं होता, and इंडस्ट्री भी वही मांगती एग्जैक्टली. है पहले. तो फिर और करना तो ऐसा करना होता है कि है. जब आपको रियलाइज होता है कि ये होना ही है, तो तब तक आपने छोड़ दिया रहता है. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. हाँ इसलिए एंड मैंने मीन्स डेवलपमेंट में मैं ज्यादा फोकस था मेरा उस टाइम. मीन्स मैंने एक महीना कोडिंग ही नहीं की थी, मीन्स मैंने डीएसए ही नहीं किया था एक महीना. एंड आफ्टर दैट भाई पता चला आफ्टर सीइंग द पॉडकास्ट एंड ऑल ऑफ स्ट्राइवर, बिकॉज आई थिंक स्ट्राइवर इज द बेस्ट गाय हु कैन गाइड द टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स. भाई वो हमारे एग्जैक्टली. ग्रुप है. वो यार ऐसा भी नहीं है कि डीएसए मतलब सब कुछ है. लाइक अगर आपको डीएसए पढ़ना ही नहीं है, तो टेक्नोलॉजी एक पिक कर लो एंड उसमें काफी लाइक हैंड्स ऑन इतना एक्सपीरियंस ले लो कि आपके अलावा किसी और को उतना नहीं आना चाहिए, या फिर आप एक आधी पोजीशन को बहुत अच्छे से टारगेट कर पा रहे हो इन डेवलपमेंट और समथिंग. लाइक आप अगर एमएल में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो टेक स्टैक इतना अच्छे से पढ़ लो कि लाइक इंटरव्यू तक क्रैक कर सके आप ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज के लिए. काफी कंपनीज ऐसे भी रहती है सर जो सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक हायरिंग करती है. दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस डीएसए एंड ऑल. ऑल्सो यू कैन डू फ्रीलांसिंग व्हेन यू आर इन योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. सो वो भी एक काफी अच्छा रहता है कि आप एक आधी टेक्नोलॉजी पिक करके एंड उसके ऊपर काम कर रहे हो, पे ले रहे हो. सो यस. एंड आपने कभी रिमोट जॉब नहीं ट्राई किया क्या? रिमोट नहीं. कि आपके पास तो अभी पीपीओ है, आप क्यों ट्राई करेंगे? एग्जैक्टली. नहीं मतलब ट्राई कर सकते हैं बट अभी नहीं, बाद में करेंगे करना होगा तो. एंड अभी एग्जैक्टली. हम आपके इंटरव्यूज के बारे में बात करेंगे कि आपके इंटरव्यूज कैसे हुए थे. बात लेके आप अभी की बता सकते हैं, मींस इंटर्नशिप्स की बता सकते हैं, तो हम कैसे सो चालू हुआ था. बेसिकली क्या हुआ था कि 3 राउंड्स थे. नहीं 2 राउंड्स थे. फर्स्ट वाज कोडिंग राउंड अगेन ऑन कैंपस था. तो फिर कोडिंग में क्या पूछा था उन्होंने, 2 कोडिंग क्वेश्चन थे. वन वाज इजी एंड अनदर वन वाज मीडियम. एंड बाकी के जो थे वो एमसीक्यूज टाइप थे. तो वहां पे जावा, पाइथन, एसक्यूएल क्वेरीज, देन हुक्स के कॉन्सेप्ट्स थे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट्स थे. एंड उसमें भी उन्होंने 2-3 सूडो कोड्स दिए थे जहां पे आपको ढूंढना था कि कहाँ पे एरर हो रहा है या फिर इसका आउटपुट क्या आ रहा है, लाइक दैट. तो थोड़े ऐसे क्वेश्चंस थे. तो ये पूरा था कोडिंग का राउंड. एंड देन वंस यू गेट सिलेक्टेड आपका इंटरव्यू होगा. तो इंटरव्यू में मेरा ऐसा हुआ था कि मुझे पूरा रेज्यूमे बेस्ड इंटरव्यू हुआ था मेरा. तो वहां पे ज्यादा फोकस मेरा प्रोजेक्ट्स पे लिया था उन्होंने, जो भी मेरे इंटरव्यूअर्स थे.
तो पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा, फिर मेरे एक्सपीरियंस में थोड़ा ओपन सोर्स का भी था, माइक्रोसॉफ्ट का भी था, थोड़ा 2-3 चीजें थी। तो फिर उन्होंने ओपन सोर्स का पूछा एंड देन कोडिंग का 1-2 सवाल पूछा सी प्लस प्लस के। देन एसक्यूएल के 3 क्वेरीज पूछे थे। आफ्टर दैट एसक्यूएल के क्वेरीज के बाद में प्रोजेक्ट्स पे आए थे एंड प्रोजेक्ट्स पूरा एक्सप्लेन करने के बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट्स में थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए बोला था। तो वो कैसे करेंगे वो भी पूछा था। प्लस मेरा जो एंगेज का प्रोजेक्ट था वो काफी इलेबोरेट करने बोला था। आफ्टर दैट कमिंग टू माय वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, तो मैं काफी टेक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी तब। एंड अभी अभी काफी लाइक इवेंट्स में मैं एज अ ऑर्गेनाइजिंग टीम काम करती हूँ। तो फिर वैसा था, तो उनको थोड़ा वॉलंटियरिंग के इसमें भी ये था कि आप कॉलेज छोड़ के पुणे के जो ओवरऑल इवेंट्स हो रहे हैं वहां पे कैसे ये कर रहे हो, किसने आपको बताया कि ऐसे इवेंट्स होते हैं वगैरह। तो थोड़े वैसे वाले क्वेश्चंस थे। फिर देन मेरे इंटरेस्ट में ऐसा था कि आई यूज्ड टू राइट टेक्निकल ब्लॉग्स वगैरह। तो वो बोले कि मुझे अभी के अभी ब्लॉग लिख के बता बेस्ड ऑन योर एमएल प्रोजेक्ट। फिर आई टुक 2 minutes टू थिंक एंड देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग। सो Okay. And I just want a last question, last answer from you. I want to ask you some last question. कि भाई आपके अप्रोचेस कैसे रहते थे टू सॉल्व द बिग प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स? अप्रोचेस कैसे रहते थे? बेसिकली ब्रेकिंग प्रॉब्लम्स इनटू डिफरेंट सेक्शंस इज इम्पोर्टेंट। Okay. पूरा प्रॉब्लम एक बार पढ़ोगे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, कैसे इसको लाइक टैकल करना है। तो प्रॉब्लम को पहले स्टार्टिंग से 2-3 बार अच्छे से पढ़ो, ब्रेक इट इनटू सेक्शंस, फिर देखो कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होने वाला है इसके लिए। सो वंस यू गेट हाउ टू यूज डेटा स्ट्रक्चर्स, उसके बाद में डिफरेंट अप्रोचेस रहते हैं। तो वंस ट्राई विद द ब्रूट फोर्स मेथड, कि जो बेसिक कोड है विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स वो ट्राई करो। वो ट्राई करने के बाद में ट्राई करो कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं बेस्ड ऑन द गिवन कंस्ट्रेंट्स। तो फिर जो कंस्ट्रेंट्स है उनको कंसीडर करके फिर ऑप्टिमाइज कोड लिखो। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स व्हेन आई प्रैक्टिस कोडिंग। Okay, okay. And the last question कि फ्रेशर्स को कोई हिंट देना चाहेंगे आप? मीन्स ऐसे ऐसे करो, hints for the freshers who are starting the coding. ओके, सो बेसिकली जो फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक का जर्नी रहता है, दीज 4 ईयर आर वेरी क्रूशियल ईयर्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें रहती है अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ। कॉलेज एक क्राउड होता है जहाँ के उसके बाहर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्राउड होता है जहाँ से आप सीख सकते हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया। यहाँ से आप लोगों को कनेक्ट करना चालू करो, नेटवर्किंग बिल्ड करो, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज क्राउड बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली क्या उनके लाइफ में क्या चल रहा है, लाइक टेक्निकली वो कैसे बिल्डअप कर रहे हैं खुद को, कौन से प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक दैट। तो स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स एज वेल एज जो भी आपके आउटसाइडर्स प्रोग्राम्स रहते हैं वहां पे। थोड़ा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस भी करो, दैट आल्सो मैटर्स, थोड़ा मजा भी आता है कभी कभी। देन डीएसए कोडिंग तो रहता ही है। ऑल्सो डेवलपमेंट ट्राई करो, बिकॉज आपको कुछ डेवलप करते हो उसका एक थोड़ा अलग कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ, यहाँ पे वेबसाइट बन रही है या थोड़ा या फिर ऐप बन रहा है। तो वो एक बेसिक लेवल पे वो थोड़ा अच्छा रहता है कि फर्स्ट ईयर से आप कुछ कुछ चीजें ट्राई कर रहे हो एंड व्हेन यू गेट इन योर थर्ड ईयर आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाता है। तो ये सब चीजें, घबराना नहीं है कभी भी जब स्टार्ट कर रहे हो। आस्क योर सीनियर्स अबाउट दैट टेक्नोलॉजी कि आपने कैसे स्टार्ट किया था, मैं कौन से रिसोर्सेज फॉलो करूँ। पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट। ऐसे नहीं है कि पीपल मतलब बाहर के जो लोग हैं वो बताते नहीं है चीजें, इनफैक्ट ते बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये सब चीजें, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत एक मैंडेटरी चीज है जो खुद के साथ लेके चलनी चाहिए कभी भी, बिकॉज वो अगर आपको नहीं है तो फिर आप कौन सी भी नई चीज ट्राई करने के लिए थोड़ा आगे पीछे Yeah. देख सकते हो। तो these are all the things. So thank you, Miss. Thank you for coming here and sharing your wonderful journey. And I am thankful to my friend also. He suggested your name for to take the podcast for her because उसने आपके approaches means as a qualities वगैरह देखे कि बोला भाई तू ये Okay. okay this will be Can much I helpful get for his the name, less. please? Okay, that is a Shantanu Wag from that guy is from Jadgaon only.
Okay, that's why. Okay, 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 okay. Yeah. So he suggested your name. भाई yes, means both qualities है and कर लो भाई podcast. This will be much helpful for the students of the tier 3 colleges. So thank Right, you for right. sharing your wonderful journey. And I will share your LinkedIn profile, guys. Connect with her Sure. on the LinkedIn, and if any doubts comes, then ask her. So thank you. थैंक यू आप इतना अच्छा काम कर रहे हो लाइक लोगों को एनकरेज कर रहे हो तो काफी Yeah. अच्छा काम चल रहा है कीप इट अप एंड यू आल्सो स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल आई होप यू आर डूइंग इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी Thanks. Thanks. या सी यू हैव अ गुड डे